آپ بھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. اٹھ کے ونڈ لو برکت. گلوری ٹو جیسس. یہ شیطان کو بتائیں کہ ہم بانٹنے والے ہیں. جتنا آپ بانٹیں گے اس کا ملٹی پلائی ہو کر آپ کو ہی واپس آنا ہے. کبھی بانٹنے سے دریغ نہ کریں اور کبھی یہ نہ کہیں خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے. خدا نے کہا جن کے پاس ہے انہیں دیا جائے گا, جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی ان سے لے لیا جائے گا. کیونکہ وہ ناشکرے ہیں, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس خدا کا بیٹا یسوع ہے, آپ اس کو ہی بانٹتے رہیں. اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتائیں. سو میرے عزیزوں, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کبھی آپ نے جب ایک نیا دن آپ کی زندگی میں آتا ہے تو کبھی خدا سے یہ پوچھا خدا آج کا دن آپ نے مجھے کیوں دیا؟ خدا آپ کو بتائے کہ کیوں دیا. کیونکہ کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا جس میں خدا کوئی آپ کی زندگی میں بڑا کام نہ اس نے کرنا ہوتا ہے. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں. اس دن کو ہم اس کی مرضی کے ساتھ نہیں گزارتے بلکہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. اب جب بھی اپنی مرضی کے ساتھ جئیں گے تو آپ گھاٹا کھائیں گے, کیونکہ آپ کی مرضی جو ہے وہ غلط ہے. جب بھی لوگوں نے اپنے جینے کا طریقہ اپنی مرضی سے بنایا تو خدا سے وہ دور گئے ہیں. آپ بائبل کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے انہوں نے فتح مند زندگی گزاری ہے. انہی کی زندگی میں بڑے جلالی کام ہو گئے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں یا خدا کی مرضی کے ساتھ. یہ آپ نے خود سوچنا ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے تو خدا کی مرضی کو فالو کریں. اس کو کہیں خدا میں تیری مرضی کے اوپر ہر چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں جب آپ, تو خدا کی مرضی کو جانیں. پھر آپ کی سلیکشن غلط نہیں ہوگی. آمین. کیونکہ بہت ساری جو ہمارا چناؤ ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. پھر ہم پوری زندگی روتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں خدا کی مرضی کو شامل نہیں کیا تھا. آمین. آپ دیکھیں کلام مقدس میں کس طرح سے خدا کے جو انبیاء تھے, جو پروفٹ تھے, وہ خدا کی مرضی کو دیکھتے تھے. کہیں انہوں نے موو کرنا ہے تو پہلے وہ خدا سے بات کرتے تھے, خدا اگر تو چاہے تو ہم آگے بڑھیں گے. جب وہ اپنی مرضی سے بڑھتے تھے وہ نقصان اٹھاتے تھے. آمین. تو آج بھی ہمیں خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کی مرضی کو جانچتے ہیں. آپ جب خدا کی مرضی کو جانچیں کہ میں آپ کو بتا دوں آپ کبھی نہ خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کو وہ کچھ نہیں دے گا جو آپ کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور اس ضرورت کے مطابق وہ آپ کو ہر چیز دے گا. آج ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے بڑھتے ہیں, اور خواہش کے بارے میں یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے؟ جب خواہش بڑھ جاتی ہے تو گناہ کو جنتی ہے, جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے. خدا ہماری خواہشوں کو پورا کبھی نہیں کرے گا, نہ وہ ہو سکتی ہے. آپ کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے. آمین. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم مت فکر کرو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. آمین. کن چیزوں کی ضرورت ہے, بلکہ لفظ لکھا کن کن چیزوں کی. آپ خوشی محسوس کریں گے, آپ شادمان ہوں گے کہ جس خدا کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. میں آج بائبل پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جو بال سر کے ہیں یہ بھی کاؤنٹ کیے گئے ہوئے ہیں. خدا نے یہ بھی گنے ہوئے ہیں. جو خدا آپ کے بالوں کو گن سکتا ہے, کیا وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟ آمین. صرف کیا مسئلہ ہے کہ ہم کلام کو جانتے نہیں. آپ نے کبھی یہ کہا خدا مجھے اپنے کلام سے بھر؟ ہم چیزوں سے بھرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو.
वो चीजें वक्ती हो सकती है, लेकिन कलाम अब तक रहेगा आपके साथ। जिसके अंदर कलाम होगा उसकी हर चीज अबदी होगी। जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है उसकी सारी चीजें आर्जी होंगी और खत्म हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हर चीज से उत्तम है, हर चीज से बड़ा है। इसलिए हमें खुदा के कलाम की भूख रखनी है, कलाम की प्यास रखें। आज हमारी भूख और प्यास क्या है? हम मादी चीजों की तलाश करते हैं और इन्हीं के लिए हम खुदा के पास आते हैं। मिल गई तो ठीक, नहीं तो गए, क्योंकि वो कलाम से प्यार नहीं करते। जब आप कलाम से प्यार करेंगे, जब आप कलाम से भरते जाएंगे, इतना आप कलाम से भरेंगे आप उतना ही फलदार होते जाएंगे, क्योंकि कलाम ने आपको फलदार करना है। कोई भी शख्स आपको फलदार नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आप निखरते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको आप कई रातें जागते रहते हैं कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल सकती सिवाय खुदा के। कभी आप खुदा के लिए रात जागे? कभी आपने रात भर कलाम को पढ़ा? कभी रात भर कलाम के साथ आपने गुजारी? नींद आएगी, लेकिन आप मोबाइल फोन पर सारी रात जाग सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। आपको शौक नहीं है। जिस चीज का आपको शौक होगा उसमें आपको नींद नहीं आएगी, उसमें आपको थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि आपका दिल उस चीज के साथ लगा हुआ है। आमीन। तो क्यों ना हम खुदा से दिल लगाएं जिसने सब कुछ देना है और बढ़िया देगा, कम नहीं देगा। कम तर चीज कोई खुदा नहीं आपको देता। ज़बूर 103 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें उम्र भर अच्छी अच्छी नेमतों से असेर और आसूदा करता हूँ। आमीन। आपका इंतखाब बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन खुदा का कोई इंतखाब बुरा नहीं होगा। आए उसको कहें, उसको इजाजत दें, खुदा तू मेरे लिए इंतखाब कर। वो आपको हर चीज बड़ी देगा, उसका कोई निमो बदल नहीं होगा। कभी एक दफा करके देखें, छोड़ दें सब चीजें। आपका इंतखाब गलत है, आप कई दफा कितने इंतखाब अपने किए, लेकिन आपको वो पूरा नहीं मिल सका, क्योंकि खुदा आपके दिल को जानता है। ज़बूर में क्या लिखा है? खुदा उसने मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। खुदा आपकी दिल को जो उसके अंदर है उसको भी जानता है। इसलिए छोड़े सब कुछ, खुदा में मगन हो जाए, खुदा के साथ वक्त गुजारें। जितने लोग खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं वो खुदा के उन कामों को करना शुरू करते हैं जो खुदा ने उन्हें, जिसके लिए उन्हें चुना है। आज हमारे पास खुदा के लिए टाइम बहुत कम है। तो मेरे अजीजों, यीशु आने वाला है। कितने लोग हर रोज इस बात का इकरार करते हैं, खुदा मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हूं। आप ऐसा करके देखिए खुदा कितना खुश होता है। खुदा और किसी चीज से खुश नहीं होता। जब आप ये कहते हैं खुदा मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, तो खुदा बहुत खुश होता है। तो आखिर आपको जाना खुदा के पास है। आप ये अल्फाज क्या करके शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुदा के पास जाएं। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक मकाम से गिरा हुआ है। इब्लीस के पास जो मकाम था वो क्या था कि वो 2400 घंटे खुदा की हुजूरी में रहता था, और फरिश्तों पर उसका इख्तियार था, वो उनका लीडर था। अब जब वो उस मकाम से गिरा तो आपको उस मकाम तक जाने नहीं देगा। इसलिए आप थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको नीचे गिरा देता है। आपको समझना है कि मेरा मकाम क्या है। जब आप ये समझाएंगे कि मेरा मकाम है खुदा की हुजूरी, आप उसकी हुजूरी में बैठे, तो हर चीज आपकी है। सिर्फ आपको प्रिपेयर होना होगा। आपको खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, खुदा आपको अपनी बरकतें नहीं देगा। आपकी जो खाने पीने वाली अशिया है, जो दूसरी चीजें हैं, वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन स्पेशल चीज नहीं मिलेगी आपको। आमीन। स्पेशल चीजों के लिए आपको खुदा को अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, वो फिर आपको स्पेशल बना देगा। आमीन। आप खुद अपने आप को स्पेशल नहीं बना सकते, थोड़ी देर बनाएंगे गिरेंगे। जब खुदा आपको स्पेशल बनाता है फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। अब देखिए, यूसुफ को खुदा ने स्पेशल बनाया,
कहां से कहां आया और उसको किंग बना दिया, एक बादशाह बना दिया उसको। याकूब को देखें, इब्राहिम को देखें, मूसा को देखें। मूसा क्या था? ये क्या है? खुदा भी आपको ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर किया, अपना सब कुछ उन्होंने खुदा को दे दिया। आए इस बात को हम कलाम में से देखते हैं। लूका के लूका का 5वां बाब उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमून की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमून ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा घौर घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमून पतरस से ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया, वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमून के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमून से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। उच्चा बोलो जरा, आमीन आमीन। सो आज हम इस बात पर गौर करते हैं। पहली बात क्या है? जब बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी। आमीन। ये बड़ी भीड़ जो है, ये यीशु के पीछे क्यों चल पड़ी थी? क्योंकि यीशु से वो जिंदगी की बातें सुनते थे। वो भूखे और प्यासे थे। उनको इस तरह का कलाम पहले कभी मिला नहीं था, जिसमें खुशी हो, जिसमें शादमानी हो, जिसमें निजात की बातें हो, जिसमें छुटकारा हो। क्योंकि उन्हें हमेशा दबाया गया होता। पक्की फरीसी उन्हें दबाते थे, अपने गुलाम बनाते थे, लेकिन यहाँ पर छुटकारे की बातें होती थी। इसलिए हजारों की तादाद जो है वो यीशु पर गिरी पड़ती थी, और उनका मकसद क्या था? उसके कलाम को सुनते थे। आमीन। क्योंकि कलाम सुनने से आपकी जिंदगी में जलाल जाहिर होता है। अगर आप खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे तो आप कभी भी खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकते। आपको खुदा के कलाम की प्यास होनी चाहिए, उसके कलाम की भूख होनी चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम, जब आप उसके भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो ये आपको असुद्धा करेगा। कलाम एक ऐसा जरिया है जो आपकी असुद्धगी को पूरा करता है। कोई इंसान, कोई चीज आपको असुद्धा नहीं कर सकती सिवाय खुदा के कलाम के, क्योंकि इसमें वो सब कुछ मौजूद है जो इंसान की जरूरत है। आपकी शफा इसमें है, आपकी बरकत इसमें है, आपकी फतह इसमें है, आपकी शादमानी इसमें है, आपकी जिंदगी इसके अंदर है। जब सब कुछ इसी के अंदर है, तो क्यों ना इसी के साथ हम अपनी दोस्ती कर लें, ताकि ये हमेशा हमारे अंदर रहे। आमीन। तो क्या हुआ? ये भीड़ जो है उस पर गिरी पड़ती है, और यीशु मसीह ने वहां पर शमून से दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों की कश्ती पर से तालीम देने लगे।
आज खुदा भी आपके वसीला से कलाम दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। आप एक जरिया है उसके लिए। क्या आप वो जरिया बनना चाहते हैं? यीशु ने शमौन को कहा कश्ती को जरा हटा ले जा, और क्या करने लगे? वहां पर बैठकर लोगों को कलाम सुनाने लगे। वो जो बड़ी भीड़ थी वो उसके कलाम को सुन रही थी। आमीन। खुदा आज आपके वसीला से उन बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। अब जब वो कलाम सुन रहे थे तो एक बड़ा मौजज़ा भी होना था। जो कलाम सुनते हैं उनकी जिंदगी में मौजज़ात भी होते हैं। जो कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं उनके अंदर जलाली काम खुदा करता है। और अब देखना, क्योंकि जब तक मौजज़ात नहीं होंगे तो लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। अब शमौन, पतरस और जितने भी थे वो भी ईमान नहीं लाते, लेकिन इस बड़े मौजज़े के वसीला से उन्होंने भी खुदा पर ईमान रखा। तो क्या लिखा? जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। आमीन। शमौन ने क्या जवाब दिया? कि हमने रात भर मेहनत की है। आज आप भी रात भर मेहनत करते हैं लेकिन अजर नहीं मिलता, क्योंकि वो आप अपनी ताकत से काम कर रहे हैं, उसमें खुदा शामिल नहीं है। जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर आपकी मेहनत फलदार भी लाती है। इसलिए कलाम में लिखा है, जब तक यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अबस है। और वो रात भर सोए नहीं थे, रात भर उन्होंने कड़ी मेहनत की थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज आपको भी कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आपको खुदा की बात को मानना पड़ेगा। आमीन। उसने जवाब तो दे दिया कि हमने रात भर, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तू कहता है तू। आमीन। जब खुदा आपको कहेगा तो फिर आप ब्लेसफुल होंगे, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई भी आपको सरफराज को नहीं कर सकता, क्योंकि सरफराजी खुदा के पास है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए शमौन ने खुदा से कहा तेरे कहने से जाल डाल। जब खुदा आपको कोई चीज मना कर दे, छोड़ दे उसको। जो कुछ कहे वो करना शुरू करें, वो छोटी हो बड़ी हो, आपको करना होगा, वो आपका पहला स्टेप होगा। आमीन। जब खुदा ने कहा यही बस जॉब करो तो आप करते रहो, हम फौरन जॉब को छोड़ देते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। वो हर वक्त जो है वो बड़बड़ाते रहते हैं दूसरों को देखकर कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो किसी और के पास नहीं हो सकता, जो उनके पास है किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा जिसको देता है वो उसकी लियाकत के मुताबिक उसको दे रहा होता है। आप जितना खुदा के साथ गहरे में जाएंगे आप उतना ब्लेसफुल होंगे। अब कश्ती को जब गहरे में लेके गए हैं, आप गहरे में नहीं जाना चाहते, खुदा आपको गहरे में लेकर जाना चाहता है। हम थोड़े पानी में रहना चाहते हैं। आमीन। क्या आप गहरे में क्योंकि गहरे में जाने के लिए आपको डर लगता है, खौफ आता है, लेकिन जब खुदा आपको कहेगा तो आप कहीं भी जाएंगे आपको खौफ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके डर को खत्म करेगा। आज कितने लोग चाहते हैं, हाँ खुदा मैं गहरे में जाने के लिए तैयार हूं, मैं जो तू कह रहा है वो करने के लिए तैयार हूं। आप यस मैन बने, और यस मैन ही लोग बरकत पाते हैं। जो आर्गुमेंट करते हैं, जो नाफरमानी करते हैं, वो फलदार नहीं हो सकते। फलदार होने के लिए आपको यस मैन बनना है, क्योंकि जो कह रहा है वो जिंदगी वाला खुदा है, वो आपको कह रहा है। तो क्या हुआ? जब उसने खुदा के कहने पर जाल डाला तो क्या हुआ? मछलियों का बड़ा गौर घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। हालेलुया। किसकी बात पर उन्होंने जाल फेंका? यीशु की बात से।
वहीं पर उन्होंने रात भर मेहनत की होती तो कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने खुदा की बात को माना तो वहीं से आपको मछलियां मिल गई, और इतनी मिली कि उनके जाल फटने लगे, और फिर उन्होंने अपने शरीकेदारों को भी बुला लिया। खुदा आपके वसीला से दूसरों को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जब तक आप ब्लेसफुल नहीं, दूसरे कैसे होंगे? शमौन की बात मानने से, जब उसने खुदा के हुक्म को माना, तो कितने लोगों ने उस नजारे को देखा। आमीन, हालेलुया। खुदा आपके वसीला से बड़े काम करना चाहता है। आप सिर्फ अपना आप उसको दे दें। वो जो कहता है वो करते रहें, थोड़ा सा स्पीड स्लो करें, वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि कलाम में क्लिक है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरोतनी सरो तो वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद कर। जब आप खुद से उड़ना शुरू कर देते हैं तो आप गिरेंगे, क्योंकि खुदा के वक्त के साथ जो कुछ मिलेगा वो अब्दी होगा। जो उसके बगैर आप हासिल करेंगे उसमें दुख शामिल होगा। इमसाल की किताब में लिखा है, जो खुदा बरकत देता है उसमें दुख शामिल नहीं करता। हमें इसलिए खुदा के साथ चलते रहें, उसके वफादार रहें, क्योंकि उसकी वफादारी में आपको सब कुछ मिलता है। तो क्या हुआ, जब बड़ी मछलियों का गौल पकड़ा गया तो पतरस देखकर यीशु के पांव में गिरा। सिर्फ एक अभी उसने हुक्म माना है, और एक हुक्म मानने के वसीला से खुदा ने इतना बड़ा उसकी जिंदगी में काम किया। अब उसको अपने गुनाह याद आए, वो कहने लगा, खुदा मैं एक बड़ा गुनहगार हूं। कभी आपने खुदा को कहा, खुदा मैं बड़ा गुनहगार हूं? हम हमेशा कहते हैं, नो 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 मैं सबसे अच्छा हूं। ये है हलीमी, ये है सच्चाई कि आप उसको कन्फेस करते हैं, खुदा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जो कन्फेस कर लेता है, जो मान लेता है, वही सरफराज भी होता है। उसका इलाज कर दिया जाता है, उसको बचा लिया जाता है। जो कहता है मुझ में कोई गलती है ही नहीं, मैं तो गुनाहगार है ही नहीं, मैं तो सबसे अच्छा हूं, ये इब्लीस का अमल है, क्योंकि वो मानता नहीं है कि मैं बुरा हूं। आज हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कमजोर हैं। शमून ने यही एक बड़ा काम किया। उसने क्या कहा? ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। आमीन। सिंपल आप कहें, खुदा मैं गुनहगार हूं। आप देखें अब क्या होने लगा, क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हो गए। जब आप खुदा के साथ होंगे तो आपकी जिंदगी में हैरान कुन मौजज़ात होंगे, ऐसी चीज़ें बदलेंगी। मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। मैं जब सेमिनरी में था और मैं अपने एक शौक के साथ ये जो चक झुमरे के आगे से आगे एक इलाका है, गांव है छोटा सा, सिखों वाली चक, किसी को शायद पता हो, तो मैं वहाँ पर मनाती के लिए जाता होता था शौक के साथ, कोई लालच नहीं था। तो मेरे पास वेस्पा गाड़ी होती थी, वो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा खाती है, बड़ी गाड़ी है। तो एक दिन मेरे पास सिर्फ 100 पीस थे, 100 रुपया था मेरे पास, और ये आप देख ले सफ़र कितना है। 100 का पेट्रोल तो वैसे 100 ने दी थी, लेकिन मैं कहा यार आज रहने देते हैं, तो पैसा भी कोई नहीं है, तो कैसे वापस आएंगे। फिर मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। मैंने 100 का उस टैंकी में पेट्रोल डलवाया और सफ़र शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तो वो इलाका भी बड़ा डेंजरस है, चोरों डाकुओं का इलाका है, दिन में लोग लूट लेते हैं। तो मैं वहाँ जब गया तो मैंने मनाती की। अब देखें खुदा क्या करने लगा। उस दिन किसी ने चंदा भी नहीं दिया। मैं सोचने लगा मेरे को तो पेट्रोल भी घर किन जाना, ये मेरे माइंड में चीज़ें चल रही। और वो सारे मुझे कह लेंगे पाशा साहब आज तुम ना जाओ, रात बहुत पै गई, रोटी खाओ, सुबह सुबह चल जाना। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना है, मैंने रहना नहीं है। अब ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास जो पैसे थे उसका तो मैंने पेट्रोल डलवा दिया था, अब गाड़ी घर कैसे जाए। तो खुदा ने मेरे से बात की। मेरे खुदा ने कहा उस बेवा की कुपी में तेल नहीं खत्म हुआ था, तो तेरी गाड़ी में तेल नहीं खत्म हुआ। बस फिर मैं जश्न मनाने लगा, मैं खुश होगा। मैंने गाड़ी बाहर निकाली, स्टार्ट की, तो गीत गाते गाते मैं घर आ गया।
हालेलुया। तो घर आकर मैंने टैंकी खोला, पेट्रोल जितना था वो उतना ही था। अब मैं खुदा के साथ चलना शुरू किया कि मेरा खुदा अजीम है, वो आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। ऐसे नहीं मैं आया, मैं एक बिजनेसमैन था, मैं फड़तर तो नहीं मैं आ गया मैं अभी चुप कर तो रुपए नो मैं कमिटेड बंदा हूं। मैंने जब तक खुदा ने मुझे कहा नहीं कि मैंने तुझे चुन लिया तब तक मैं चला नहीं था घर से। इसलिए खुदा कहता है उस वक्त मनादी के लेना जाओ तब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। जब इस तरह की कोई मनादी करता है तो वो भाग जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा आपके वसीला से अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। मत परेशान हो कि आपके घर में क्या नहीं है। खुदा सब कुछ जानता है कि आपके पास क्या कुछ नहीं है। आखिरी बात हम करेंगे, प्रेज द गॉड। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शब्द से का खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करे। क्या करेगा? आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्ती को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। सब कुछ छोड़कर। मरियम ने सब कुछ छोड़कर यीशु के कदमों में बैठ गई। तो क्या कहा यीशु ने? मार्था ने ऑब्जेक्शन किया कि ओ खुदावन, तुझे फिक्र नहीं है, मैं अकेली हूं। मरियम को कहा कि वो मेरे साथ काम करवाए, मैं थक गई हूं। यीशु ने क्या कहा? मार्था मार्था, तू नहीं जानती, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। आमीन। तो आए उस अच्छे हिस्से को आप भी चुने ताकि खुदा आपको भी आदमगीर बनाए। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो वो आदमगीर बनाएगा। अगर आप अभी तक आदमगीर नहीं बने तो आप खुदा के साथ चल नहीं रहे, क्योंकि जिसको भी खुदा ने चुनना उसने किसी एक और को बचाना आपके जरिए से। यही काम है खुदा का। आए उस काम को जारी करें। आए हम भी शमन की तरह जो खुदा कहता वो करें ताकि खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। सो खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस।